Thank you, Manisha. See what a great lapse it would have been. So if you are, if it is the Raj Yoga practices that you are doing, that is meditation, just see that you become more regular, you sit in a more relaxed way. You try to intensify those practices and get the maximum benefit out of it. And if it is Gyan, which you are more interested in, do not forget to do your Nididhyasan on a daily basis so that you can ponder over the subtle nature of the divinity that is within you and connect and understand it in your own way. Because everybody understands or arrives at their self-realization in their own particular way, which can happen more easily because of Nididhyasan. Okay. Another interesting point which I wanted to say was, we all are quite attracted towards Sufism, isn't it? We love to hear Sufi poetry, but we are not very sure where they fit in into our this construction of the Vedanta that we are studying. So Sufis talk about everything in an elliptical way. They talk in poetry form. So they are able to convey more than what we would normally convey by logical language. Logical language will convey only what it chooses to convey. But poetry, everybody can interpret in their own way. And somewhere deep down, the mind understands what the Sufi Sant is telling. It is called the language of twilight. And what is twilight? The mixing of two zones. अब जैसे अभी हमारे अभी थोड़ी सी ही देर में हमारे twilight का period शुरू हो जाएगा, and our Rishi Munis have said that our hearts are melted at that time. So somehow Sufis are able to melt the heart और उसमें अपना रंग वो चढ़ा देते हैं, अपने मतलब फिलॉसफी का रंग हमारे ऊपर जल्दी से चढ़ जाता है बिकॉज ऑफ सूफीज्म. और अब मैं आपको एक छोटी सी इंग्लिश की, इट इज नॉट रियली अ पोएट्री बिकॉज देयर इज नो राइम, बट इट हैज दैट सेम काइंड ऑफ secrecy about what they are trying to convey. So I'll tell you in poetic language. For some time, cultivate in secret, O mind, my love for Krishna. Why go and bathe in the lake of Krishna? Why would your clothes get wet? So you see, they are speaking from so many angles. They are speaking from the terrestrial angle, the philosophical angle, the devotional angle, all at the same time in a mixed up language. This is the language of the evening. सूफी संत आशा के मादक घूंट पिला देते हैं. ऐसा प्याला पिला देते हैं वो, जाम का ऐसा प्याला, मादक होता है ना, उससे नशा चढ़ जाता है. सूफी संत आशा के मादक घूंट पिला देते. मैंने भी 2 लाइनें काफी साल पहले लिखी थी, वो आप लोग के लिए पढ़ देती हूँ. भक्ति के घाट भरूं घट को, अब पनघट और की आस नहीं. असुवन जल से यह ताल भरा, तन मन धन इसमें डूब रहा. डूब रहा means the present continuous as well as the perfect past. Because डूब करके ये डिसॉल्व ही हो गया है, खत्म ही हो गया है. और अब आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि कहानी के बिना आप लोग को मजा नहीं आता है, तो मैं एक छोटी सी कहानी भी आपको सुना देती हूँ, एंड देन आई विल स्टार्ट ऑन आवर आत्मबोध. तो एक बार एक राजा ने राज दरबार में हमेशा नटी और नटनी आते ही रहते थे,
और राजा को रिगेल करते ही रहते थे। तो एक बार एक नटनी आई हुई थी और काफी देर से वो डांस कर रही थी, और राजा का तो मन ही नहीं भर रहा था, वो तो उठने को ही तैयार नहीं था। तो नटनी अपने नट को बोली, कहे नटनी सुनो माल देओ, मध्यम ताल बजाए। भैया तुम धीमी ताल बजाओ, राजा का सम्मान रहे और अंत घड़ी कट जाए। अगर मैं बीच में रोक दूंगी तो राजा का निरादर हो जाएगा, तो राजा का सम्मान रहे और अंत घड़ी कट जाए। तो नट बोला, बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी भी अब जाए। कहे माल देव सुनो नटनी, ताल में भंग न आए। तू अपनी ताल में भंग मत आने देना, नहीं तो अपनी नाक कट जाएगी। तो तू तेरी ताल, तू अब थोड़ा सा ही समय रह गया है, नाक नाक अपनी मत कटा देना। तू ताल को मिस मत करना, चाहे कितनी भी थकान हो। ये शब्द क्या उन्होंने कहे, नट ने कहे, एक बहुत बड़ा चमत्कार घटित हो गया राज दरबार में। तो क्या हुआ, वहां पर एक सन्यासी बैठा हुआ था, और वो भी राज दरबार में इनवाइटेड था क्योंकि बहुत बड़ा सन्यासी था। तो उसने ये लाइन सुन करके नटनी को कंबल दे दिया। फिर उसके बाद राजकुमारी ने अपने गले का हार उतार करके दे दिया, और राजकुमार ने अपनी जेब से एक थैली निकाली जिसमें की मोहरे थी, वो मोहरे उस नट को पकड़ा दी। अब जो राजा था वो तो महाकंजूस मक्खी चूस था, उसकी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। सडनली इन लोगों ने एक के बाद एक क्यों इसको इतने बड़े बड़े गिफ्ट देने शुरू कर दिए। तो उसने कहा कि इसकी खुराफात शुरू करी है इस वैरागी ने। तो पहले वैरागी से पूछा कि भैया तुमने क्या सोच करके इसको कंबल पकड़ा दिया। तो वो वैरागी बोलता है कि मैं सन्यास से थक गया था और मैं सोच रहा था कि मैं शादी कर लेता हूँ, मेरे मन में शादी का विचार आ गया था। लेकिन इसकी बात सुन करके मुझे लगा कि पूरी लाइफ का मेरा तप सब बर्बाद हो जाएगा और मैं फिर वापस लुढ़क जाऊंगा। इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल में ताकत आ गई और मैंने उसको कंबल दे दिया। और राजकुमारी ने कहा कि राजा से कहा कि हे पिताजी, आप तो मेरी शादी करने को ही तैयार नहीं थे और मैं तो इलोप करना चाह रही थी। तो मैंने सोचा था कि बस कल मैं इलोप कर जाऊंगी अपने बिलवेड के साथ। लेकिन ये शब्द सुन करके मैंने कहा कि इस तरह के व्यवहार से आपकी भी बुराई होगी और मेरी भी बदनामी होगी, तो मैं इस चीज से रुक गई हूँ। फिर उन्होंने कहा, अच्छा और राजकुमार तुमने क्यों दे दिया उसको मोहरों का थैला। तो उसने कहा, क्या बताऊं पिताजी, मुझे कहते भी शर्म आ रही है, लेकिन मैंने अपने मन में निर्णय करा था कि आप तो मुझे राज्य सौंप ही नहीं रहे हैं और बहुत दिन हो गए रुके रुके, तो मैं आपको आज रात मर्डर करने वाला था जिससे कि मैं हथिया लूं ये सिंहासन। लेकिन इसकी बात सुन करके मेरा मन बदल गया और मैंने कहा, इतने दिन तो ठहरा हूं, अभी थोड़े दिन ठहरूं और। तो ये सब सुन करके राजा के मन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया और उन्होंने राजकुमार को तो अपना राज्य दे दिया, राजकुमारी की शादी करा दी और सन्यासी तो अपने ही भाव से सुधर गया। तो देखिए कब किसका शब्द हमारे कानों पर किस तरह से पड़ जाता है और उसका कितना बड़ा असर होता है। ये कहानी इस बात को व्यक्त करती है। ठीक है। तो अब हम आत्मबोध पर आ गए हैं और 47 वर्ष। और आप लोगों में से एक दो जो भी जिनका वाईफाई स्ट्रांग है, क्योंकि कई बार नहीं तो बहुत बार स्टैटिक साउंड आ जाता है जो कि थोड़ा अवॉइडेबल है। जस्ट 1 सेकेंड।
47th verse. Samyak Vigyanvan Yogi सम्यक विज्ञानवान योगी Swatmanyeva Swa Atma Ev Akhilam. Swa आत्मा Atma Ev Akhilam Jagat. अखिलम जगत हाँ. Ekam cha Sarv Atmanam सर्व आत्मानं Ikshati ईक्षते Jnana Chakshusha. ज्ञान चक्षुषा हाँ, ये वर्ष है. The perfect yogi of realization and enlightenment. 120 किसका ये? क्या नाम है? जीत. अभी तक भी कोई किसी का? I'm not understanding whose it is. That is. It's Padma ji. Padma ji was talking. I don't know. Padma ji, is there anybody behind you? It who was is talking? Sarita Ruia. I have muted her. You have muted her. Okay, thank you. So the perfect yogi of realization and enlightenment sees through his eyes of wisdom. Gyan Chakshusha. वो लिखा है ना इसमें. The entire universe is his own self and regards everything as his own self and nothing else. जब हमको ये मालूम पड़ जाता है कि सभी का सबस्ट्रेटम एक ही है, तब ऑटोमेटिकली हमको सबके साथ एक फीलिंग ऑफ वननेस आने लगती है. अभी तक वो एक साधक की ही बात कर रहा है, एक योगी की ही बात कर रहा है, who is now at the brink of realization. We have also done 47 shlokas and we should have come up to this level. We should have been here at the brink of realization. I will take the explanation of 47 and 48 together. So I will now read out the 48th verse. Atma eva idam आत्म एव इदम jagat sarvam जगत सर्वम atmanah anyanna vidyate. ठीक है? अन्यन्न हाँ, विद्यते. मृदः यत्वत् घटादीनि, मैं सबको संधि विच्छेद करके बोल रही हूँ. मृदः यत्वत् घटादीनि हृदः यत्वत् घटादीनि स्वात्मान स्वात्मानं स्वात्मानं सर्वमीक्षते. सर्वमीक्षते सर्व में वो ही देखता है. The tangible universe is verily the Atma itself. Nothing whatsoever other than the Atma exists. Just as pots and jars are verily made of clay and cannot be said to be anything but clay, so too for the enlightened person, all that is perceived is the self. तो अब ये देखिए, ये अंतिम चरण है एक साधक का, as I have already told. इस स्थिति को डिस्क्राइब करते हुए जिस समय जनक को ज्ञान लगा था, जनक was a very evolved sort of a sadhak who after the first 23 verses he became absolutely in this state what we should have arrived at on the 47th verse. So he says, मेरा मुझको नमस्कार. जो मेरे अंदर वो अविनाशी तत्व है उसको मैं प्रणाम करता हूँ. That miraculous thing which is within me, that miracle which I have up to now not recognized and was using it for my day-to-day activities. Today Guru has opened my eyes and I am now seeing that I am blessed with this miraculous Chintamani which is there within and without me, and I am interwoven with it.
There is no existence without it. So this is the state. Now, let's come down to ordinary level, not to Janak standard. And suppose I ask you, what is the weight of the pot? ये जो पनघट पे पनिहारिन जाती है मटका लेकर के, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हाथ में मटका उठाया जाता है इसका वजन क्या है, तो आप कहेंगे भैया 3 किलो 4 किलो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द मटका, है ना? Then I will ask you, what is the weight of the clay? What is the weight of the clay? Then you will say it is the same as the weight of the matka. That means only the clay has got weight. What about matka aspect of it? The matka has got no weight. What is the weight of this body? Whatever is the weight, 50, 56, 57, whatever is the weight of this body. But what is the weight of amla? It is the same. That means the word amla has got no weight. That means the form that this pot has taken, this also a pot, no? This pot has taken this form. So the form and the name has got no weight. The weight is only intrinsic of the material from which it is made. And what is Vedanta telling us? That you are interwoven of the Sat Tattva. You have emerged out of the Sat Tattva. You are only the Sat Tattva. There is no separate existence of yours without the Sat Tattva. जैसे कि मेरी एक बैंगल है, समझ लीजिए सोने की बैंगल है, तो मैं कहूंगी कि भाई इसका क्या वजन है, तो आप कहेंगे कि इतने ग्राम का है ना? तो अगर उसमें से सोना निकल जाए तो उसका क्या वजन रहेगा? तो उसका तो कोई वजन ही नहीं रहेगा. इसका मतलब बैंगल का फॉर्म जो था और उसका जो नेम है वो वेटलेस है, और जो उसका तत्व है वो ही उसकी असलियत है ना? So an enlightened yogi sees the entire creation as a play of the Atma Tattva only. अभी देखिए पुराने जमाने में ये लोग और ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट बात नहीं करते थे, क्ले और सोने की बात करते थे, मट्टी और सोना, है ना? अभी हमारे सामने जो सिचुएशन है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतना एडवांसमेंट कर लिया है, ऑलरेडी दे हैव रिड्यूस्ड ऑल मैटर टू जस्ट एनर्जी. तो हम लोग के अंदर ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है ना कि जो मैटर है वो तो खाली एनर्जी है, और एनर्जी का कोई वेट ही नहीं होता है, फॉर्म का कोई वेट ही नहीं होता है. तो सारी मैटर एनर्जी है. एंड व्हाट द साइंटिस्ट गो ऑन टू से दैट वी कैन सी मैटर और एनर्जी स्पार्क्स disappearing before our very eyes. इसका मतलब मैटर की कोई अहमियत ही नहीं रह गई है, इवन साइंटिस्ट के माइंड में अहमियत नहीं. और अब हमको as students of Vedanta, we have to go just one step deeper than that. Matter has already got reduced to energy and weightlessness, and we have to just understand from where the sparks of energy are arising, and we are in our Atma Tattva. It is that close to us, just one step under the mental field, the mind. Mind के एक जगह एक पर्दा आप नीचे उतरिए और आप उस तत्व में आप ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं. Now when will I be able to do? ये सब intellectually समझ में आ गया, लेकिन ये मेरी experiential knowledge कब बनेगी? When the attraction for all worldly things has got reduced from my mind. When
all the opposites become a level play field. That means जो कुछ भी संसार में हो रहा है, एक तो वो प्ले है, it is a play, it is a level play field. क्या क्या मतलब हुआ? जो एक बार हारता है वो कल को जीतता है, और जो आज जीता हुआ है वो कल हार भी सकता है ना? तो हार और जीत भी बराबर है, जिसके लिए success and failure is the same, a calamity and an occasion for joy is the same. He has acquired the level play field. But there is another way of doing this. So, if we apply the bangle example to the world, we are thinking names and forms are real, and missing out on the clay and gold. हमारी आंख इतनी नेम एंड फॉर्म में अटक जाती है कि हम वो जो उसके भीतर की चीज है वो हमको कभी दिखाई ही नहीं पड़ती. We are asking, where is God? But the truth is that God alone has taken all the forms that you see in this universe. So where is God? He is in everything on which we set our eyes. तो एक enlightened master की ये दृष्टि हो जाती है कि हर एक चीज में वो उसी को देखता है. But our vision doesn't come to that. We think we are made up of the 5 elements. जब तक हम सोचते रहेंगे कि we are made up of the 5 elements, तब तक हमको 5 elements ही दिखेंगे, क्योंकि हमने अपने आप को 5 elements करके जाना है. देखिए, ये बात बहुत ही एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है कि आप समझ लीजिए कोई प्रोग्राम में जा रहे हैं और कोई आप ट्रैफिक जैम में फंस गए, तो बहुत सी गाड़ियां वहां पर इकट्ठी हो जाती है ना. तो जो लोग अभी वो प्रोग्राम में जा रहे हैं उनको ये लगता है अच्छा ये लोग सब भी उसी प्रोग्राम में जा रहे होंगे, इसीलिए इतनी भीड़ है. जो कुछ भी आप कर रहे होते हैं ना, आपको लगता है कि बाकी सब लोग भी वो ही कर रहे हैं. Suppose I am an evil person who always wants to extract something or the other from people, then I will think everybody has got that evil tendency of wanting to extract. So I'll never trust anybody. जो कुछ मेरा जहन होता है वो ही मुझे सबका जहन करके दिखता है. इसलिए हम लोग सत्संग के पहले, शुरू हुआ 4 बजे के पहले, यही बात कर रहे थे कि अगर हमने सबको मुक्त देखना शुरू कर दिया तो मैं भी मुक्त हो जाऊंगा. मेरी मुक्ति में यही वो रह जाता है कि मुझे दूसरों की खामियां दिखती हैं तो मेरे अंदर खामी रह जाती है. अगर मैं सबके अंदर का परफेक्शन देख सकूं तो मैं भी परफेक्ट होकर के अभी का भी मुक्ति हासिल कर सकती हूँ. यहाँ पर देखिए, हाँ, अब एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि जैसे हम लोग समुद्र में जाते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है? वेव्स हैं और इतनी बड़ी लहर उठ रही है, और अब अगर मैं उसमें स्विमिंग कर रही हूँ तो नाउ आई हैव टू जंप एट दिस टाइम बिकॉज द लहर इज कमिंग. तो हमको लहरें 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 दिखती हैं, तो हम कभी भी पानी के ऊपर नजर हमारी नहीं पड़ती है. तो पानी जो कि उसका तत्व है, जो कि कभी फोम बनता है, कभी सुनामी बनता है, कभी छोटी लहर बनता है, कभी बड़ी लहर बनता है, उस पानी के ऊपर नजर होना ही हमारी दृष्टि तत्व पर होने को कहा जाता है. ये अब 48 वर्ष में आता है, आत्मा एव इदम सर्वम, आई एम सीइंग माई सेल्फ as name and form, and therefore I see the world as name and form. I am this body, so I see everything as body. If we have a vision of oneness, we live with harmony and love. If we do not have that vision of oneness, the whole world appears to be against me. The great masters live with love, harmony, and compassion. Ordinary people live with strife, tension, and discord because their minds have drawn walls around them. What is necessary is to lift our vision. If I look upon myself as a body, then for me everybody is a body.
if I am identified with my emotions, then everybody's emotions will be important for me. If I am of the intellectual type, then everybody's principles and concepts, वो क्या सोचता है, उसके ideas क्या हैं, इसी में मैं उलझी रह जाऊंगी, because I think I am intellect. तो मेरे लिए सबका intellectual field important होगा. Oh, I don't like to mix with these people. Their intellectual level is very low. Oh, they are into just, smoking, drinking, and having coffee parties. So I will be drawn to those who are intellectuals, or they are of a higher thinking capacity. If I lift myself to the spiritual level, then I will clearly see that the entire universe is the manifestation of the one supreme self. Beyond name, form, and qualities, there is only one self, no difference. Then we can see the world from that level. But first, I have to lift myself to that level. Kyunki yatha drishti tatha srishti. For one who's holding a hammer, अभी समझिए मैं एक उस टाइप का हैंडीमैन टाइप का आदमी हूँ, हाँ, और मेरे हाथ में एक हैमर है, तो मैं सोचूंगी कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि जो नेल दिखाई दे रहा है उसको ठोक करके दीवार के अंदर उसके अंदर घुसा दो. मैंने अपने आप को उस तरह का मान रखा है, हैंडीमैन, मैं तो फटाक से सब चीज ठोक पीट करके ठीक कर. For me, only that kind of a solution will occur to me. Whereas the vision of the great masters is Isha Vasyam Idam Sarvam. Only pure consciousness pervades the whole universe. How did they realize? Not by going outside, but by going inwards. I explore the world outside. I cannot come to the understanding of the underlying oneness. Dive within, beyond name, form, and actions, qualities and relationship. नाम, रूप, गुण, कर्म या क्रिया और मन, उन सब से मुझे ऊपर उठना है, स्पेशली ड्यूरिंग माय मेडिटेशन. जो हम लोग 10-5 मिनट मेडिटेशन में देते हैं, उस समय में अपने आप को इन सब चीजों से ऊपर उठाऊं. The beautiful aspect is that when I realize I am nothing, I become everything. When I drop all my identifications, I do not become zero, but I become the infinite. Many people have this fear that if I drop everything, nobody will respect me. I must keep my individuality. Otherwise, I will be lost. At the functional level, it may be right. But think about what is really better for you. Just to exist at the materialistic or the terrestrial or the functional plane, or to feel that joyousness within me of the oneness of everybody, that I am one with everybody. उससे जो एक exalted feeling, जो एक contentment, जो एक fulfillment मेरी life में आ सकता था, उसकी जगह I have chosen to be respected by people. And then I am asking for strife and tension. तो आप ही अपने आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या पसंद आता है. So now we have completed these two verses, the explanation of these two verses, and with them we have completed the subject of fruits of self-knowledge. जो fruits हमको मिलते हैं, जो हमारा जो महात्म्य है ये आत्मबोध का, उससे जो एक साधक को मिलता है, जैसे महिमा पढ़ी जाती है ना, कोई भी शास्त्र हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसकी भाई इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, जो हमको उसका फल मिलता है. तो ये दोनों वर्सेस के साथ हमने वो सारे फ्रूट्स डिस्कस कर लिए
जो हमको आत्मबोध का चिंतन दे सकता है। अब हमारा 49th वर्स, in this we are going to embark upon the description of the enlightened being. तो जीवन मुक्तस्तु, this is the 49th verse. I'm trying to read in Sanskrit, which you all know, I don't know. जीवन मुक्तस्तु जीवन मुक्तस्तु तद विद्वान पूर्णोपाधि गुणाम। तद् तद विद्वान पूर्ण उपाधि गुणान उपाधि गुणाम त्यजेत। त्यजेत। सच्चिदानंद रूपत्वात् सच्चिदानंद रूपत्वात् भवेद भ्रमर कीटवत्। भवेद भ्रमर कीटवत्। हाँ, a liberated soul endowed with self knowledge gives up the traits of his previously explained equipments या उपाधिज। जो कुछ भी उसने अपने आप को मान रखा था, जो कुछ भी आइडेंटिटीज अपने आप को दे रखी थी, जैसे कि मैं एक औरत हूँ, मैं अच्छी हूँ, कि मैं बड़ी अच्छी माँ हूँ, कि भाई मुझे तो कुकिंग बहुत बढ़िया आती है, ये जितनी भी उपाधिज मैंने दे रखी थी अपने आप को, वो सब वो वहीं का वहीं छोड़ देता है। वो किसकी उपाधियां हैं? वो छिलके की उपाधि है। जैसे एक औरत है तो उसको कैंसर हो गया है, लेकिन उसने कैंसर को अपने अंदर लिया ही नहीं है। वो कैंसर है। जैसे कोल्ड मुझे हो जाए ना, जैसे मुझे सर्दी हो गई, तो मैं कहूंगी कि ठीक है, सर्दी आई है, जैसे आई है वैसे चली जाएगी, है ना। खांसी, गला थोड़ा खराब हो गया है ना। तो इसने कैंसर जैसी डिजीज को अपने अंदर लिया ही नहीं। तो उसकी लाइफ में वो उसने कहा कि ठीक है, ये है तो ये ठीक है, ये भी मेरा फ्रेंड है। तो उसको 5 तरह का कैंसर आता और जाता रहा, लेकिन उसको अफेक्ट नहीं करा। और ये मैं कोई रियलाइज मास्टर की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ। एक औरत कि उसको स्किन कैंसर भी हो गया, फिर उसको थोड़े दिन के लिए ब्लड कैंसर भी हो गया। वो उनसे निकलती और उसके ऊपर वो आती थी और लहर की तरह से, और वो उसके अंदर से चली भी जाती, फिर आती थी, फिर कहती थी अच्छा मुझे तो मालूम पड़ गया था कि ये रिकर हो गया है, लेकिन डॉक्टर्स मेरी बात नहीं मानने को तैयार थे। उन्होंने कहा टेस्ट करो। तो सामने वाले ने को डर डर के उसने पूछा कि भाई क्या रिजल्ट रहा तुम्हारे टेस्ट का? हाँ वो आ गया है, मुझे तो मालूम ही था कि वो आ गया है, लेकिन वो जैसे आया है वैसे चला जाएगा। कैन यू इमेजिन an ordinary person taking a disease like cancer in this way? It's unbelievable, but it can be done. And if it can be done, and then we can take it so easily, then it will never affect me. Na? मैं उससे अछूता ही रह गया। तो रमन महर्षि को भी कैंसर हुआ था, और रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर हुआ था, और रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हुआ था, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल कैंसर्स होता है। लेकिन दे रिमेन्ड, ऑफ कोर्स दे वर ट्रबल्ड, ऑफ कोर्स देयर बॉडी वाज रैक्ड बाय इट, बट इन देयर डीप इनसाइड दे वर अछूता, उससे असंग होकर के रहे। ठीक है। अब इसमें एक शब्द आया है जीवन मुक्ति। तो मैं पहले इसका वो एक्सप्लेनेशन पढ़ देती हूँ। Liberated soul endowed with self knowledge gives up the traits of his previously explained equipments. I have already read this. हाँ, अब मैं आ जाती हूँ जीवन मुक्ति शब्द पर। जीवन मुक्ति मतलब शरीर रहते वह प्रज्ञा चक्षु के द्वारा जान लेता है कि उसकी रियलिटी क्या है, और वह अपना बाकी जीवन ब्रह्मवत बिताता है। और जैसे हमने गीता में राजा जनक का नाम, एक ही 2 लोगों का नाम कृष्ण भगवान ने गीता में लिया है, उसमें से राजा जनक एक है, जिनके लिए कि वो कहते हैं कि ये जीवन मुक्त इंसान थे। ठीक है। उनको विदेह मुक्त भी कहा जाता है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग विदेह मुक्त वो स्थिति है
जो कि इस शरीर के खत्म हो जाने के बाद जो जो व्यक्ति अपनी लाइफ टाइम में जीवन मुक्त रहा है वो बॉडी के चले जाने के बाद विदेह मुक्त कहलाता है। और इसलिए सीता जी को, लेकिन जनक जी को उनकी लाइफ टाइम में ही विदेह मुक्त कहते थे और सीता जी को वैदेही भी कहते थे। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है कि जब आदमी जीवन मुक्त होता है तो जैसे इस बॉडी से असंग हो जाता है, ही इज नॉट कंसर्न। तो इसके ऊपर हाँ, अब एक बात आपको और बता दूं कि बाकी सब रिलीजन्स में और सब ब्रांचेस ऑफ वेदांत में केवल विदेह मुक्त की बात आती है और केवल अद्वैत ज्ञान में अद्वैत मतावलंबियों के लिए जीवन मुक्ति की स्थिति बताई है। लेकिन बाकी सब लोग विदेह मुक्त की ही बात करते हैं, मतलब कि ये शरीर जब खत्म हो जाएगा तब ये इंसान मुक्त हो जाएगा। शरीर बंधन है और वो मुक्त है और तभी मुक्त हो सकता है जबकि शरीर छूट जाता है। लेकिन अद्वैत वेदांत में बताया जाता है कि जीवन मुक्त की भी स्थिति होती है। एक एनलाइटन मास्टर जीवन मुक्त है, जीते जी वो सब तरह से मुक्त है। ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट हम लोग को मिला है ना, फॉर बिकॉज ऑफ विच वी शुड परस्यू वेदांत मोर डिलिजेंटली, है ना। तो अब मैं आपको कुछ लाइनें पढ़ करके सुनाती हूँ। Anybody has a question? Why was Janak called Jivan Mukta? I'm telling you how he spent his life, because of which he was called Jivan Mukta. Okay, it did not affect him. I described this lady's condition who was in cancer and all the other upheavals which happened. And anything, you don't get that much affected by whatever is happening. जगत की बदलती घटनाएं कोई भेद न घट में उपजाए. Roxana has told me she doesn't like the poetry, isn't it? No, I said I don't understand the poetry. I didn't say. I said it sounds very good, but I don't understand it. No, but now you try to understand because the words are very simple, Roxana. Yeah. Yes. जगत की बदलती घटनाएं. Is this clear? कोई भेद न घट में उपजाए. घट मतलब here घट is also used as the hriday, as your heart. They do not create any upheaval in your heart. Shiv tanmayata hate na ghate. See how many times the word ghat has been used in different contexts with different meaning. The word is only ghat, but it has been used in so many ways. This is meant to be the the highlight of poetry. जगत की बदलती घटनाएं कोई भेद न घट में उपजाएं. शिव तन्मयता हटे न घटे, कल कला काल कोई न खले. चाहे कुछ भी संसार में होता रहे, मुझे उसको मेरे दिमाग में वो कोई खलल पैदा नहीं करता है, कोई हिंड्रेंस मेरे लिए नहीं आती बनती है. शिव में ठहरे मुक्त योगी की पंचभूतों की देह की चादर. शिव में जो ठहर गया है, जो शिव तत्व में योगी ठहर गया है, उसके ये पंचभूतों की बनी हुई ये देह का जो चादर है. सर्पों की छोड़ी केचुल सी योगी से नहीं पाती आदर. जैसे कि सांप अपनी केचुली छोड़ देता है, उसको वो कोई पीछे मुड़ करके देखता भी नहीं है. इस तरह से ये शरीर में कोई भी परिवर्तन होता रहता है तो उसको अफेक्ट नहीं करता है. जबकि हम लोगों को अपनी शारीरिक परेशानियां सबसे ज्यादा, मतलब दे क्रिएट अ टर्मोइल इन आवर माइंड. इज इट नॉट सो? बट दे हैव लेफ्ट देयर देह की चादर. इसलिए जब अलेक्जेंडर के सिपाही आए थे, एक संत को पकड़ करके ले जाना चाहते थे सोक्रेटिस के लिए, क्योंकि सोक्रेटिस जो अलेक्जेंडर का गुरु था, उसने कहा था कि तुम भारत जा रहे हो तो मेरे लिए ब्रह्मज्ञानी गुरु लेकर के आना. तो एक ब्रह्मज्ञानी संत को जब वो पकड़ करके ले जाना चाहते थे
और उन्होंने तो उसने कहा मैं तो जाना नहीं चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम अलेक्जेंडर का ऑर्डर नहीं मानोगे? तो बोले कि मेरे को मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। बोले हम तुमको मार देंगे। तो खिलखिला करके हंस पड़ा, क्योंकि उसने अपनी पंचभूतों की देह की चादर को एक सांपों की केचुल के जैसे छोड़ दिया था। विदेह मुक्त के प्राणों का संबंध दिव्य शिव की शक्ति से सहज स्वाभाविक हो जाता। वह सदा उल्लसित आनंदित स्वच्छंद स्वतंत्रता में रहता। उसको कोई डरा नहीं सकता और उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि तुमको कि मैं तुमको रस्सी बांध दूंगा। किसको बांधेगा रस्सी? मेरा स्वरूप तो वो विशाल विस्तृत ब्रह्म है, उसको बांध करके तो तुम दिखाओ, तुम में है क्या सामर्थ्य? कृष्ण भगवान क्या बोले थे दुर्योधन को कि बांध सको तो बांध, और उन्होंने अपना स्वरूप इतना बड़ा बना लिया, है ना। तो इस तरह का उसका अंदर का सोच हो जाता है। अब इसमें जो सेकंड लाइन है उसमें ये आता है कि he verily becomes Brahman as the worm transforming into the wasp. तो अभी क्या है देखिए, ब्रह्म कीट भ्रमर कीटवत, इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो इसमें ये माना जाता है कि जो वॉस्प होता है वो एक लार्वे को पकड़ करके लाता है, एक पहले घर बनाता है, उसका एक ही छोटा सा मुंह देता है, उसमें एक लार्वे को वो रख लेता है, और वो लार्वा जब भी निकलने की कोशिश करता है या हिलता है तो वो वॉस्प जो है, भ्रमर जो है, वो उसको एक डंक मारता है। तो वो जो छोटा सा कीड़ा होता है वो इतना घबरा जाता है कि वो हर समय वॉस्प वॉस्प भ्रमर 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 ही सोचता है। तो पुराने जमाने में सब लोग ये मानते थे कि वो डर डर के वो जो लार्वा है वो भ्रमर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन ये तो बात बहुत ही इलॉजिकल लग रही है ना। जो तुम पहले से नहीं हो वो तुम्हारे ऊपर थोपा नहीं जा सकता। तो अब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो वॉस्प है वो एक पर्टिकुलर जात का लार्वा उठाता है और उसको ला करके अपने घर के होल में डाल देता है, और जो फीमेल वॉस्प होती है वहां पर वो एक फर्टिलाइज्ड एग उस लार्वा के ऊपर रखती है। It is not actually the larva transforming into a wasp, but the female Brahmari, she keeps a fertilized egg on top of that larva, and the wasp sits at the mouth of the hole and he keeps on stinging the larva, and eventually in due course of time that fertilized egg becomes the wasp and flows out of that hole of the wasp, that house of the wasp with the single hole at the top. You understand? Did you understand this thing? Can everybody open this thing and nod or say something or the other that they have understood? Yes, Huh? Mausi ji. Okay. Yes. तो ये है इसका वॉस्प का जो उसका सीक्रेट है. It is not really a larva getting transformed into a wasp, but really the fertilized egg of the female, which the female has planted on top of the larva, that gets transformed. अब आप लोग जो सब यहाँ पर बैठे हैं, मैं आज आप लोग के साथ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ. मैं आपको ये बात आपके अटेंशन में ला रही हूँ कि जैसे प्रोनाउंस 3 होते हैं ना, मैं, तुम और वो. These are सर्वनाम applicable to everybody. So all those who are sitting in front of me will be तुम, है ना? And all those at a distance will be वह. या भक्ति मार्ग में भगवान को बोलते हैं वह.
वो सब ऊपर वाला सब देख लेगा, वो सब देख लेगा. तो वी आर रेफरिंग टू these 3 words which are तुम, वह और मैं की बहुत बड़ी का महत्व है वेदांत में. तो आज का एक्सपेरिमेंट ये है, आज का एक्सपेरिमेंट 2 हिस्सों में है. पहले हिस्से में आप लोगों में से एक जन, मैं कुछ शब्द कहूंगी और आप लोग केवल मिट्टी मिट्टी मिट्टी, बाकी सब लोग अपने मन में बोलेंगे. और एक जना, who would that person like to be? मिट्टी बोलने वाला कौन बनेगा? अनुपमा जी कह रही हैं. हाँ, anybody else has opted for it? ठीक है. Okay, Anupama ji. Anupama ji, you please unmute yourself and you will say मिट्टी. ठीक है? तो मैं कुछ भी कहूंगी ना, तो आप लोग मिट्टी, अनुपमा जी जोर से मिट्टी कहेंगे और आप लोग सब अपने मन में मिट्टी कहिएगा. We are going to the root of the what it is made of. We are going to the source. Okay? घड़ा, मिट्टी. थोड़ी जोर से बोलिएगा. सुराही, मिट्टी. शकोरा, मिट्टी. पॉट, मिट्टी. मिट्टी. अमृतबान, मिट्टी. मिट्टी. कमला, मिट्टी. ईंट, मिट्टी. मिट्टी. दीवार, मिट्टी. मिट्टी. पहाड़, मिट्टी. मिट्टी. शिखर, मिट्टी. मिट्टी. टीला, मिट्टी. मिट्टी. प्लैनेट अर्थ. मिट्टी. तो आप लोग ने ये जान लिया कि at the if you reduce it to its very end, everything is mitti. Now we are going to embark upon the second part of our experiment, where Alka ji has very gracefully consented to say मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ. ठीक है? So I will be saying a list of words and you all will say अंदर ही अंदर मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ. हाँ? Everybody else please mute yourselves. आँख, मैं हूँ. कान, मैं हूँ. मन, मैं हूँ. शरीर, मैं हूँ. त्वचा, मैं हूँ. बुद्धि. मैं हूँ. इन वस्तुओं में से कोई भी यह नहीं समझ सकता कि वो है, क्योंकि इन सब चीजों में किसी में भी चेतनता नहीं है. केवल मनुष्य में यह चेतनता है, जो कि मैं हूं उसको अंदर से समझ में आता है. वो जो अवेयरनेस है, जो जिसका जिक्र शुरू में करा था, वो अवेयरनेस हमको ये अनुभव कराती है, पर्सनल एक्सपीरियंस को अनुभव कराती है. अब हम लोग जहां तक हमारा दृष्टि जाती है, ध्यान जाता है, उस चीज को मैं हूं करके एक्सपीरियंस करेंगे. अब मैं हूं आप बोलती जाइएगा अलका जी. मिट्टी, मैं हूँ. जल, मैं हूँ. हवा, मैं हूँ. सूरज, मैं हूँ. चांद, मैं हूँ. तारे, मैं हूँ. पेड़, मैं हूँ. पौधे, मैं हूँ. फूल, मैं हूँ. पत्ती, मैं हूँ. कली, मैं हूँ. बीज, मैं हूँ. फूल का खिलना, मैं हूँ. नाक में सूंघने की शक्ति, मैं हूँ. जीभ का स्वाद, मैं हूँ. पर्वतों की ऊंचाई, मैं हूँ. नदी की चंचलता, मैं हूँ. आकाश की असंगता, मैं हूँ. समुद्र की लहरें, मैं हूँ. बादलों का हल्कापन, मैं हूँ. लोहे का भारीपन, मैं हूँ. मन का गुस्सा, मैं हूँ. मन का खुश होना, मैं हूँ. मन की शांति, मैं हूँ. भीतर की साइलेंस, मैं हूँ. भीतर का शोर, मैं हूँ. अच्छे विचार, मैं हूँ. बुरे विचार, मैं हूँ. हर्टफुल होना,
मैं हूँ पुचकारना, मैं हूँ उकसाना, मैं हूँ घबराना, मैं हूँ ममत्व, मैं हूँ वात्सल्य, मैं हूँ सकुचाना, मैं हूँ फैलना, मैं हूँ सब कुछ मैं हूँ, इसलिए मेरा मुझको नमस्कार। यह एक चमत्कारी तत्व हमारे पास है जिसकी आज तक हमको पहचान नहीं थी। अब हमको गुरु का इशारा समझ आ गया है, इसलिए हमारी जिंदगी एक नए पैमाने पर पहुंच गई है और हमारी मुसीबतों से, सारी मुसीबतों से एक साथ छुटकारा मिलने की राह हमको दिख गई। मेरा मुझको नमस्कार। और अब मैं आप लोगों के लिए एक भजन प्ले कर देती हूँ जिससे कि यही भाव पुष्ट हो जाएगा। जहाँ तक जाती दृष्टि है वहाँ तक फैली सृष्टि है। जहाँ तक जाती दृष्टि है वहाँ तक फैली सृष्टि है। सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप है। मुझसे ही जन्मा संसारा, चांद सूरज व्योम सितारा। 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 चांद सूरज व्योम सितारा, जगमगाती ये सृष्टि है। मेरी तो आत्म दृष्टि है। जगमगाती ये सृष्टि है। मेरी तो आत्म दृष्टि है। सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप है। बसा है वो ही नैनों में,
नजरिया देखे अन्य कैसे, सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप है। पिरोया मन में प्रभु ऐसे, बादलों में हो चले जैसे, पिरोया मन में प्रभु ऐसे, बादलों में हो चले जैसे, बादलों में हो चले जैसे, या गहनों में सोना जैसे, सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप है। इसी गुरु ज्ञान के प्यासे थे, मिला यह राज अमोलक है, इसी गुरु ज्ञान के प्यासे थे, मिला यह राज अमोलक है, मिला यह राज अमोलक है, पिया यह अमृत प्याला है, जहाँ तक जाती दृष्टि है, वहाँ तक फैली सृष्टि है। सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप है। Thank you, Amlaji. It was great. What an experience and what a gift, I tell you. Thank you. Real in gratitude I am today. What a Thank you. gift. Thank you so What a much, gift. Amalaji. Thank you. Thank you, Thank you. Ramlaji. It was fantastic. Fantastic. Wordings were so beautiful. Like how he explained everything. No, that was really. बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। मतलब oneness में चला, oneness, it was only oneness. I'm so glad that we have come to this. एकदम जैसे शांत हो गया ना, जैसे जैसे वो गाता गया तो एकदम अपने अंदर वो फीलिंग आती गई, है ना? और वो फोटोग्राफी, आंखें हाँ, बंद होने लगती हैं, आंखें बंद होने लगती हैं। अच्छा। अभी है ना Very मदर्स डे गया है। वैसे तो रोज ही मदर्स डे, उस पे एक बात आपने जो बताई ना हाँ, कि हम जो सोचते हैं हमें लगता है लोग भी वही कर रहे हैं, हाँ, में ऐसा फील होता है। तो हाँ, मैं इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे माइंड में उस टाइम आ रहा था हाँ, कि मदर, अगर बच्चा ठंड लग रही है चाहे नहीं लग रही है, अपने को ठंड लग रही है तो सोचेगी कि मेरे बच्चे को ठंड लग रही है। हाँ, बिल्कुल राइट। तो वो फीलिंग मदर की जो है वैसे ही हम कनेक्ट That's the करते हैं। psychology. डायरेक्टली कनेक्ट किया मैंने कि नहीं, आई डोंट नो। हाँ, Thank you. thank you so much.